So, hopefully, all of you have listened to yesterday's video recording. I couldn't listen to it. I went through nearly halfway. But anyway, doesn't matter. So, now, further, if you have any questions, you can ask. Kalyan, I wanted to talk to you. Can you unmute? Yes, sir. How is your daughter? The younger one, sir. नहीं जिसके बाल निकल रहे थे ना जो हेयर वाज कमिंग ऑफ Yes, sir. Yes, sir. who I was have, she's your daughter, isn't it? yes. My younger daughter. Yes, sir. Mhm. Did you apply some points? Not yet, sir. You asked me to, frame the protocol. I wanted to talk to you later. I'll frame the protocol and share it to you, sir. You were non-approachable, sir, for some reason or the No, other. I was there in a forest area, sir, for a different work. So Acha. signals were not there. So even like yesterday also, I couldn't attend the class. Oh. I have not gone to the recording also, but anyhow, I will catch up, sir. In yesterday's one. Yes, mentioned it. Okay, sir. Good. Yes, Shiva, did you listen to recording? Anything further you want? Any Yes, sir. clarification? Yes, sir. If you allow me, I can ask, sir. Yes, go ahead. Sir, like in yesterday discussion, like multiple sclerosis use case, whatever Lakshmi Devi madam proposed, like in which I observed it, sir, like horizontal meridian also, like LU7 point has come, and liver spore spiral dryness point is also LU7. So now horizontal also we have to sedate, spiral also we have to sedate the same point. So you know how to do it. That now that is the question, sir. Like now, like So there are now two horizontal. directions. So there are two directions. Yeah, yes, sir. One direction, LU7 horizontal, and one direction, Spirally we have to do. spiral also, it is sedation. Yes, sir. Oh, so it's very easy. Instead of 45 degrees, you can make it little more horizontal. That is Oh, in towards between the horizontal. two. Whenever there are Okay, two directions, okay, you sir. take the middle one. Oh, okay, Do you okay. understand? Shall I draw it? I shall draw it. Yeah, I understand, sir. Towards horizontal to spiral. Say now like this, then you have to little towards horizontal. Whenever there are two directions, you just take the Hmm. middle one, the resultant. Oh, okay, okay, sir. Hmm? Okay, sir. My network is not properly functioning, or maybe I don't know what to do. कैसे करें हाँ it. Okay. Have you understood, or should I draw it? Yes, sir. I understand, sir. All of you have understood? सबको समझ में आया कि मैं draw करूं? Let everyone understand. Huh? Yeah. Okay, sir. Anyone सर wants to? स्पाइरल के साथ बीच में हार्जेंटल के बीच में लेना है सर. हाँ देखो, this is suppose horizontally, suppose we are taking, suppose, right hand. So this is left hand. So left hand we are taking. So then this is LU7 sedation. स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सर. स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर आपको. Okay. Oh, अच्छा. 1 minute. Sir, I just to show practically here. Is it okay, sir? Like so now if this is okay. Mhm. Somehow. So,
This is point LU7. This is point LU7. Left hand LU7. Horizontally, we are sedating LU7. And then a spiral also you have to sedate, I think. Is it? Yes, sir. As per the protocol, we have to sedate. Yes. So on the same point, you have to also apply another. Needle should be like this. So now these two needles cannot be applied at the same point. So what we should do? That is the question of so what we shall do is we will take a needle and we will apply like this. We'll apply like this. So we will apply like this. This is so this is the final direction. This will come more towards horizontal. Got it? Yes, sir. Sir, if suppose horizontally sedation, spirally tonification, suppose. If that case also, we have to take the middle of that too, sir. Yes. Yes. Good. That's good. Whenever there are two directions, so take the resultant. Okay? Okay, sir. Thank you. So this is clear. Sir, next question is, sir, like, sir, we are discussing, like, even in Vijay Meridian book also, we are defining like a 4 quadrant for, like, say,
360 degree our chi is accessible, but we are mainly focusing on 0 to 90 and 180 to 270, as one is normal flow and opposite flow. We don't And need. we are exactly mapping the energy also. Like say in normal flow, if it is wind, in opposite flow, it is humidity in inside. So similarly, like in 80 to, sorry, 90 to 180 also, that should be one energy, right, sir? Or 270 to 360 also, there is some energy, right, sir? That I want to understand, like, of course, you already told, like, that is very complex, and if you go Hey, further it's deep, not it is very complex. You people have drawn it, isn't it? You have all posted it in the group. What was that? You have done it. You have done it, and then Varshney has done it, and then Sridhar also did it. And all of you have posted, isn't it? Charts in the in the group. in What is the that? 90 to 180 degrees, sir. Suppose, नहीं say for नहीं example, पूरा you only have posted. No, you have not posted. Probably Sridhar and Rahul, Dr. Rahul, they posted it. Guys, but see what is happening is the chi moves. How the meridians are created? Meridians were created right in the mother's womb. So wherever the chi was supposed to go, it is started going there, and the work function was on. So what was required in the beginning? From no form to form. Nothing, very little microscopic form to full body, hardware, everything. So what is required? What kind of chi is required? Yang chi is required. So the Chinese saw whatever meridians they saw the flow. They could see the yang chi component. The triple warmer mechanism has not yet started functioning in the mother's womb. This mechanism started functioning only after the child was delivered. Are you understanding what I'm saying? yes, sir. Yes, sir. You are always more interested in philosophy. Well, I also like it. I'm like you. वहां तो ट्रिपल वार्मर mechanism was not at all, it had not started functioning. It was the mother's triple warmer mechanism which was functioning. So the question of generation of chi by the organs never arose. It had not started generating chi on its own, nor even the original chi was available. That was also not, because everything was done with the help of the chi available from mother. The mother was providing every kind of chi was provided by mother only. सबको समझ में आ रही है? All of you are getting what I am talking. इकबाल भाई, आपको समझ में आ रहा है आ रहा कुछ? है, समझ में आ रहा है सर। Yes, sir. Ramesh is understanding. Lakshmi, are you able to catch up? Venkatesh, of course. समझ में आ रहा है कुछ? You can ask. जब नहीं समझ में आएगा, you can always ask. सर हिंदी में बोल दीजिए। मेरिडियन कहाँ बना? मेरिडियन माँ के गर्भ में बन गया। माँ के गर्भ में क्या हुआ? एक छोटा सा सेल था, वो सेल से पूरा बॉडी बना। उसके लिए कौन सी चीज चाहिए? यांग ची यांग। चाहिए। तो यांग ची ही पहले दौड़ दौड़ के सारा क्रिएट करना किसका काम है? जनरेशन, क्रिएशन, दिस इज फंक्शन ऑफ यांग ची। सो इट वाज द यांग ची, मोस्टली द यांग ची दैट स्टार्टेड फ्लोइंग टाइम एंड अगेन टू द सेम। सपोज मान लो लंग्स बनना है, so time and again the chi is flowing. What kind of chi is flowing? Yang chi mostly. So all the meridians that were first manifested were of course vertical meridians carrying yang chi, because जो ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म था वो तो माँ के गर्भ में चालू हुआ नहीं। वो तो जब बच्चा बाहर आ गया तब उसका ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म चालू हुआ। ओरिजिनल ची बना,
लाइफ एसेंस से, ये सब तो बात की बात है ना। अपना ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म बच्चे का चालू हुआ ही नहीं माँ के गर्भ में। कैसे काम हो रहा था? माँ के ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म में जो चीज बन रही थी उसी चीज से सारा काम हो रहा था, हार्ट का, लंग्स का, सबका काम उसी से हो रहा था। समझ में आ रही है बात अब? हाँ सर। यही बताया मैंने। ठीक है। अब बात रह गई कि किडनी की जब बात आती है, व्हेन वी टॉक ऑफ किडनी, देयर इज ऑलवेज ए स्पेशल ट्रीटमेंट। किडनी की बात ही अलग है। इट्स नॉट लाइक अदर ऑर्गन्स। सो किडनी में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मान लो हमें, सपोज वी हैव टू generate yin chi of liver. लिवर की yin chi बनानी है। इफ वी हैव टू generate yin chi, what we can do? If we have to increase the yin of liver, so liver horizontal meridian, yin tone. अगर yin को टोन कर दिया, राइट, जनरेशन करनी है तो क्या करना? उसका ब्रेन को लेना पड़ेगा, गॉल ब्लैडर का। द ब्रेन इज गॉल ब्लैडर मेरिडियन ह्यूमिडिटी। सो हॉरिजेंटल मेरिडियन में काम कर दिया। Here, when we are doing in horizontal meridian, I am not saying that if you are tonifying yin of liver, you are stopping liver's function. Am I saying that? I'm not saying that. ची तो बन ही रहा है। किडनी में ये है ही नहीं। किडनी की मैकेनिज्म अलग है। किडनी में यिन बनाने के लिए अलग है एक किडनी, और यांग बनाने के लिए दूसरा किडनी यूज कर रहे हैं। एक ही किडनी में यिन बनाना है, यांग बनाना है, देन वी हैव मेरिडियंस ऑफ कोर्स। बट व्हेन किडनी, आई एम सेइंग दैट शी इज द मदर आफ्टर मदर। मां के हट जाने के बाद पूरे बॉडी और सारे ऑर्गन्स के कम जो सोर्स है वो क्या है? किडनी है। सो देयर हैज टू बी a little different thinking and treatment of kidneys from the treatment of other organs. किडनी की यिन बढ़ानी है, एक बात है। अनदर स्टेटमेंट इज यिन ऑफ किडनी बढ़ानी है। यिन किडनी को बढ़ाना है या किडनी की यिन को बढ़ाना है, द ट्रीटमेंट विल बी डिफरेंट। सारा जो ट्रांसलेशन अवेलेबल है, इंक्लूडिंग ऑल द इंग्लिश ट्रांसलेशंस एंड स्पेशली जो बड़ी बड़ी किताबें हैं, फेमस किताबें प्रचलित हैं, पॉपुलर बुक्स, दे इनफैक्ट आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। उनको वो इस तरह की बात ही नहीं करते। हॉरिजॉन्टल मेरिडियन की बात ही नहीं है उनके पास। दे डोंट टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस। पीटर डेडमैन हो या किसी और की बात है, बुक ऑफ चेंजेस की तो बात ही अलग छोड़ दो। ऑकट हेम्पमैन, जिसकी किताब मैं फॉलो करता हूँ, करा मैंने पढ़ा, उसमें भी नहीं है। ऑफ कोर्स वो लंका, श्रीलंका वाला, क्या नाम है उसका, क्लिनिकल एक्यूपंक्चर, जय जयसूर्या, सूर्या। कुछ नहीं है। ये सब है नहीं। कहाँ है वहां? यिन किडनी, यांग किडनी, ये सब अलग से कहाँ डील किया भाई? कहीं नहीं लिखा हुआ है। कहीं एक जगह लिखा है ये वाटर किडनी है, फायर किडनी, दैट्स ऑल। एंड दे आर नॉट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑल्सो, वो भी नहीं किया है। एक बात ध्यान रखने की है कि किडनी की ट्रीटमेंट हमेशा स्पेशल है, क्योंकि वहां पर हमारे पास दो अलग अलग किडनी है। लिवर में दो लिवर नहीं है, एक यीन जनरेट करने के लिए, एक यांग जनरेट करने के लिए। ऐसा नहीं है क्या? दो लिवर है क्या? नहीं दो हार्ट है नहीं है क्या? दो लंग्स है, लेकिन यीन जनरेट करने वाला और यांग जनरेट करने वाला है नहीं। उनका सर्कुलेटरी सिस्टम हाँ। और उनका इनर्वेटिक नर्वस सिस्टम कॉमन है। किडनी दो है, इसकी नर्वस सिस्टम भी अलग है, ब्लड वेसल्स भी अलग है, इंडिपेंडेंट है।
इसलिए इसको दो अलग ऑर्गन, सेपरेट ऑर्गन माना है। ठीक है, चलो, एनीथिंग एल्स? Sir, what is the answer, sir, for my question? Like four quadrant we are talking. हम्म You started about meridian. हम्म Sir, about the four quadrant, we are हाँ, focusing on normal flow, opposite flow, but what about these two quadrant? Yes, sir. chi can move in any direction. In one plane, it is 360 degree. The plane itself can be rotated in 360 degree. So it is a spherical. You see the three-dimensional, right? So chi can go in any direction, but we can treat through meridians. How we can treat? Because there are certain points where certain quality of chi is getting accumulated. Accumulation points are there. हम लोगों ने क्या किया है, accumulation points को ज्वाइन किया एक स्ट्रेट लाइन से, एंड वी कॉल्ड इट मेरिडियन। उसको मेरिडियन बोल दिया। अब हम when we are trying to treat, we are trying to treat the chi accumulated at a point. Truly speaking, the chi of liver got accumulated at certain points, and we joined that with a line and we called it meridian. We are not sure that the chi is flowing right in that particular line. Maybe it is going, jumping and going to point, whatever way. That mechanism is not known. Now, yesterday I received a research paper from one Dr. Raman Kapoor. He is the only person with government's Padma Award, acupuncturist and a medical doctor. So he says that a new research has come in where the certain fluid is flowing just below the skin. And he said that this is the physical proof of meridian. पहले कुछ आया था, अभी कुछ आ रहा है, अभी कुछ आएगा, ये सब होते रहेगा. But we, from our Indian wisdom, we know that pran is what? Pran is manifested by the Nirakara, Nirvikalp. How it is manifested? It is manifested whenever it gets the right place. Jayse, for example, sun. Sun rays are falling everywhere, but some portion is brighter and some portion is darker. One side is day, the other side is night. एक जगह धूप है, दूसरी जगह छाए है. कहीं पर ज्यादा धूप पड़ रही है, कहीं पे कम धूप पड़ रही है. सबसे ज्यादा कहां पड़ रही है? ह्यूमन बॉडी एक ऐसा यंत्र है, सच ए थिंग, जहां पर दैट आत्म तत्व या चेतन तत्व हैज manifested highest varieties of prana, including vivek, which we called it apara shakti of Paramatma. Such a concept is not there. The quantum physics says that electrons, when they are flowing through two different slits, double slit, they behave like waves. Yes. And if we close one of the slit, it looks like a particle. No, sir. When we measure it, that will become particle. If you don't measure it, that is act as a wave. Not measure. If you observe it. Yeah, that's what. Observe is measure. So if you observe it means measure, but not exactly measure. What will you measure? What are you trying to measure? You are not trying to measure anything. So then you can see shape. What else?
The sound waves, if they are obstructed, the forms are generated. Different forms are generated out of the sound waves, isn't it? तो हमारे यहाँ क्या कहा? Even in Christianity they say word was in the beginning. हमारे यहाँ भी शब्द नाद ब्रह्म है. तो अभी क्या हो गया? Chi can move in any direction. Chi can move in any direction. You can represent in every quadrant. You have done it. ग्रुप में सबने डाला है. डॉक्टर वार्ष्णेय ने डाला है, आपने डाला है, और एक किसी और ने, उसने भी डाला है, कुछ ने, Yes, श्रीधर ने भी yes. डाला है. ठीक है, इट्स ओके, ठीक But है. बट इट डजंट मैटर व्हाई, बिकॉज ची जब एक डायरेक्शन में चल रही है तो चल रही है. हाउ द ची मूव्स इन भारतीय ज्ञान, प्राण कैसे चलता है? डू यू नो इकबाल? प्राण कैसे चलता है? हाउ इट गेट्स डायरेक्शन? No, sir. प्राण फॉलो करता है मन को. All this is not there in Chinese acupuncture. This philosophy is not known to them. मन से फॉलो करता है. मन कैसा है? What is the definition of man? I asked this question to one of the spiritual masters of the present day, highest master, one of the highest, most popular masters. He could not reply. He was explaining things about man, कि मन के अंदर हमारा शरीर है. मन is enveloping. It's like envelope. I said, in Ayurveda, which is Upuved, they describe man anuvat hai. Man is like an atom, very small particle, and it is available at one point at a time. And you are saying that it is like envelope, it is like a halo. You kindly explain. I've been asking this for last 3 years, and there is a mum. I don't blame him. He has a technique, and that technique is working. Like you have a formula, TCM formula, it works, but not that you can explain it. But I am trying to explain 5-element theory. But I'm not trying to show you my ego that I'm better than that master. He's very No, sir, no, popular. He sir. has a It's following true, in true. millions. I don't have a following of millions of people. But then he should have answered. Directly पूछा मैं. I'm like Shiva. Oh, blast the question, the answer will come, so I shall get educated. If he could have explained, I would get the answer, and that will add to my wisdom. So now, if the chi can move in only one direction, the same chi can move everywhere. So if it is moving in one quadrant, we don't have to consider the other quadrant. Now, I have categorized. Yang will go vertical. And the normal flow is from earth to sky. That is outside the earth. This is normal flow. Vertical flow. Horizontal is parallel to earth. And diagonal is the resultant. Do I need to say anything further? Any point? If it is yang, it will go vertically outside. If it is yin, it will go parallel to earth. and the real chi will be just the resultant of the two components. Yes, if we want to utilize the opposite effect, it is the effect. It is not really the flow of chi. Flow of chi तो उधर ही हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है. It is the opposite flow is only the effect, which is very difficult for you to contemplate. Maybe after some time you will get to know it. करते करते हो जाएगा. Like in a chessboard, the coins we are moving, the pawn is going one house
next house, fourth house, fifth house. So there is a movement of the vacancy also. No, vacancy movement is not the real movement. Actual movement is the coin's movement. That is only the effect of that movement. That is opposite flow. आपको समझ में आ रही है जोशी जी? जी सर, समझ रहा हूँ सर। तो अपोजिट हाँ जी, फ्लो सुन क्या रहा हूँ। है? अपोजिट फ्लो का मतलब भी क्या है? वैक्यूम भी फ्लो हो रहा है, जहां से हट गया. While playing chess, you have to look at both the aspects. कौन सा हाउस में कॉइन गया और कौन से हाउस में वैकेंसी हो गया, मैंने खाली कर दिया. वो खाली कर दे, दैट इज अपोजिट फ्लो. So we don't have to worry. If we are worrying, so whichever way it is going, उसका अपोजिट तो उतना ही होगा. अगर इधर जा रहा है उसका अपोजिट इतना. We are considering only the normal and opposite, anywhere. Normal and opposite, any direction. पूरा स्फीयर में नॉर्मल एंड अपोजिट उतना ही है, खत्म. ऐसा थोड़ी है कि चारों तरफ चल रहा है. आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट. इफ दैट इज सो, then the whole Ayurveda will be at a loss, whole Rigveda will be at a loss. अणुवत है मन, और प्राण मन को फॉलो करता है. इंद्रियां काम नहीं करेंगी अगर मन नहीं उनको अधिग्रहित कर लेता है. इसी इंद्रियाज मीन्स सेंस ऑर्गन्स. Suppose your mind is not here, if you are not concentrating to my sound, I may say something, you will not listen. Yes. If your mind is not in your eyes, Yes. someone can pass and you will never see it. You will never notice. Yes. Suppose I'm thinking something and someone has passed. I may not notice because my mind is somewhere else. You understand my point? Yes, sir. Yes, sir. So pran is following man. That means it is like flow of man. यद्यपि man is again complicated because there are two ends to man. I had written a paper on man. That became very popular. Yes. You remember I had told you that. Yes, sir. You told, sir. But we are talking about that man which is outside, free, which is not, one end is fixed with Atma Tattva. Right. So therefore many a times that which is witnessing everything and doing nothing, जो करता कुछ नहीं है केवल देखता है, उसी का मैनिफेस्टेशन है प्राण. सो प्राण हैज टू फ्लो अकॉर्डिंग टू मन. मन अणुवत है, छोटा, एक ही दिशा में फ्लो कर सकता, लाइक पॉन्स ऑफ द चेस बोर्ड. फिनिश्ड. एक साथ में किसी सब कोऑर्डिनेट, सारे कोऑर्डिनेट्स में नहीं जाता बाबा. किधर भी जाने तो दैट इज नॉर्मल फ्लो, और उसका अगेंस्ट में अपोजिट फ्लो होगा. इधर जाएगा, एक कोऑर्डिनेट में गया, वो नॉर्मल फ्लो है, उसका अपोजिट में नॉर्मल. सो जिधर भी जा रहा है वो दैट इज नॉर्मल फ्लो, और जो खाली हो रहा है वो उसका अपोजिट हो रहा है. बस तो ही देखने का, नॉर्मल फ्लो, अपोजिट फ्लो. मैंने देखा है क्या कभी किसी ट्रीटमेंट में? आपने देखा मैं कर रहा हूं किसी क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं? आई एम नॉट टॉकिंग, आई एम टॉकिंग ओनली ऑफ टू थिंग्स, नॉर्मल फ्लो एंड अपोजिट फ्लो. डॉक्टर वार्षिने, आई एम टॉकिंग ऑफ only two flows, normal flow and Opposite flow. opposite flow. You people are interpreting it in quadrants, this, that, you are drawing so many sketches. मैंने तो ड्रॉ नहीं किया. I am not drawing it. The philosophy is that wherever it is going, अणुवत है. मन क्या है? अणुवत है. अगर अणुवत मन है तो जो उसको फॉलो कर रहा है प्राण, वो एक ही दिशा में जाएगा. That pointer, you can't walk on two paths simultaneously. Agar maybe it is going to the same place, no problem, but you can't follow the two paths simultaneously. Wherever you go only on one path. That is normal flow. And that which you are vacating is the footprints. That is opposite. Very, I don't know if I'm able to convey, because you need really a Sadguru to make you understand all this. And I am looking at Chinese wisdom from the lens of Indian wisdom.
So I need only normal flow and opposite flow. I don't have to educate you into different quadrants. Of course, I appreciate whatever you are doing. Go ahead, because all points you will know in any direction. But quadrants, I have never used quadrants for treatment. Have I ever said treat in this quadrant, in that quadrant? Have I said no? Prana can go from anywhere to anywhere. Prana has been identified by two things: the function and the place. In Ayurveda, if you have read Ayurveda, I don't know. जिसने भी आयुर्वेद पढ़ा है, she is not here. आयुर्वेद आचार्य 5 प्राण है सर, उसके बाद फिर 5 के 5 उप प्राण है, एक एक उपप्राण। प्राण को कैसे आइडेंटिफाई किया है? उसकी प्लेस के जगह, हिसाब से हृदय में रहता है तो प्राण प्ले वायु है। हाँ, प्लेस और उसका गुण, फंक्शन। फंक्शन डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं की। डायरेक्शन की कहाँ बात है? डायरेक्शन की नहीं है, फंक्शन की बात है। फंक्शन और प्लेस, तो हम भी वही कर रहे हैं। हम तो कहीं से भी आई एम स्टार्टिंग ए मेरिडियन फ्रॉम sp3, sp3 बिकम्स विंड। और किधर है क्वाड्रेंट? कौन सा क्वाड्रेंट में है sp3? Any point can become starting point and any point can become the finish point. I am talking on that. Have you noticed me talking of quadrants? Me talking of anything? No. I'm not talking about. सर जो प्रारब्ध होता है, क्या Prarabdha is वो different. I am talking of the flow of chi. Flow of chi. Meridians are what? Meridians are the line connecting the accumulation points. Yes, sir. So we had taken, okay, flow. Chinese said that it flows. Yin meridians going from bottom to top, yang meridians coming from top to bottom. All that has been told by Chinese, and I'm accepting it. मैं उसमें सर एक चीज ये कहना चाहता हूँ, जो हमारा प्रारब्ध है वो क्या हमारा एसेंस है जिसको किडनीज ट्रांसफॉर्म करती हैं ओरिजिनल चीज में? प्रारब्ध क्या है? इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फिलोसफी, एक्यूमुलेटेड। आज के बाद क्लास नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, आई डोंट माइंड। हम भी, आई ऑल्सो एंजॉय फिलोसफी। क्या है? एंटरटेनमेंट। नहीं, दिस इज ऑल, प्रारब्ध दिस इज भी तो ऑल। एक्यूमुलेटेड है ना सर? प्रारब्ध क्या है? Now, I have pair of specs. It has certain power. या This is suitable for my eyes. It may not be suitable for your eyes. आपकी आंख के लिए ये ठीक नहीं होगा, मेरी आंख के लिए ठीक है। यस सर। तो जो एसेंस कहाँ आया? जाइगोट में। जाइगोट कैसे बना? एक माँ और बाप के दोनों के सहयोग से जाइगोट बना। यस सर। उस जाइगोट में क्या दे सकते हैं? ये लेंस जो बना, वो लेंस का क्या पावर होगा? उसमें हम क्या कर सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? कितना कर्वेचर दे सकते हैं? ग्लास का बोल ले लिया, उसमें से कट किया ना, लेंस कैसे बनता है? लेंस कैसे यस बनता है? सर। हाउ यस इट इज सर। मैन्युफैक्चर्ड? यू कट इट, convex, कट इट। concave, convevo, convex, convexo, concave, all that shapes are there, isn't it? Different kinds of यस mirrors, different kinds of glasses, right? So every piece of lens will have certain capacity. Similarly, when the essence is given in that zygote, then the capacity, potential of that human being, of that life, not human being, that life means birth to death, that life, it has certain capacity. उसकी क्या कैपेसिटी है? अकॉर्डिंगली ही इज डेस्टिन्ड टू स्पेंड द कर्म फल। संचित कर्मों में से उसके जो रिजल्ट्स हैं, हाउ मच यू कैन स्पेंड, हाउ मच दैट कैन यूटिलाइज, कितना खर्चा कर सकता है कौन? कैसे माँ थे, कैसे बाप है, और आप गए, कितना लेके गए, कितने दिन के बाद गए, कितना क्षीण हो गया, राइट? सो अभी जो बन गया वो एसेंस चला गया, अभी एसेंस की कैपेसिटी मालूम है वो क्या क्या कर सकता है, पूरा प्रिंट है उसमें, राइट? दैट इज नोन एज प्रारब्ध।
That's why I'm saying that kidneys तो are transforming the prarabdha. हमने आपसे कहा था when we were doing EOVs, Yes, sir. EOV में मोस्टली क्या है? मोस्टली इट इज दैट ची ओनली, दैट Yes, sir. जिसको हम ओरिजिनल Original ची, cheese. बट देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल ची एंड द ची मेड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स। कुछ ज्यादा Yes, sir. डिफरेंस नहीं है। वो मिल जाएगा, अगर उस ऑर्गन के मेरिडियन में गया तो वो भी वही हो जाएगा। Oh, तो yes, sir. ओरिजिनल ची गोज टू लिवर मेरिडियन, इट बिकम्स लिवर ची। Liver cheese. है, ठीक है, बट इट विल हैव दैट प्रॉपर्टी ऑफ सक्शन। Yes, sir. Unique feature of the original cheese. लेकिन वो जब चला गया लिवर में तो वो लिवर के जैसा हो गया, जहां गया वैसा हो गया। हम्म। तो प्रारब्ध की बात यहां कैसे हमने कही थी, ईओवी में क्या कहा था? अगर हमारा शनि खराब चल रहा है, राहु खराब चल रहा है, ये खराब चल रहा है, कुछ भी ऐसा बोलते हैं ना ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र इज वन ऑफ द 6 पार्ट्स ऑफ वेदास। Vedant. Vedas. वेद के 6 अंग हैं। Oh, शिक्षा, yes, sir. शिक्षा है, ज्योतिष है, दर्शन ये है, और 6 फिलोसफी भी है। Yes, sir. तो हमें समझना चाहिए प्रारब्ध से कोई मतलब नहीं है, प्राण से मतलब है हमें, क्योंकि प्राण के बिना हम कोई फंक्शन नहीं कर सकते। वी कांट रियली फंक्शन विदाउट, निष्प्राण होकर के कोई काम नहीं। किडनी में प्राण नहीं तो काम नहीं करेगा। लाइफलेस किडनी विल नॉट वर्क, लाइफलेस हार्ट विल Hmm. नॉट वर्क। तो हमें लाइफ से मतलब है, हम एक्यूपंक्चरिस्ट हैं, हमें लाइफ फोर्स से मतलब है। नहीं, प्रारब्ध से हमें मतलब नहीं है। प्रारब्ध से मतलब है, होता है किसको? आयुर्वेदाचार्यों को। वो पहले उनकी कुंडली बनाते हैं। जो ज्योतिष शास्त्र में निष्णात नहीं है वो अच्छा वैद्य नहीं है। आयुर्वेद में ये लिखा है भाई, मैं बता रहा हूं, चरक संहिता में लिखा हुआ है, वैद्य हैज टू बी ए ज्योतिषी। पहले ही वो पेशेंट का ज्योतिष कुंडली देख लेता है कि ये जीने वाला है कि मरने वाला है, देन ओनली ही स्टार्ट्स Yes, मेडिकेट। sir. नहीं तो मना करता है, अगर आप जीने वाले नहीं है तो मतलब राम नाम लीजिए, वही वही है आपका दवा। ठीक है, समझ में आ रही है? और Yes, sir. एक क्वेश्चन और सर. दैव व्यापाश्रय इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट इन आयुर्वेद। दैव व्यापाश्रय, हैव यू हर्ड? What नाम. Pitta you have heard of Sat Dhatu, you have heard of 7 धातुस. Teen Tridosh, you have heard of प्रदोष. all this. But have you heard Daiva Vyapashraya? सारे दुखों, सारे रोग का कारण प्रज्ञा अपराध है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। व्हाट इज प्रज्ञा अपराध? यू हैव टू लर्न। पूरा पढ़ जाओ ना, आयुर्वेद की किताब खरीद लो। सूत्र स्थान हिंदी में मिलता है, इंग्लिश में मिलता है, एवरीथिंग इज अवेलेबल नाउ डेज। कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, स्टडी। हमने तो पूरी स्टडी कर ली, इसलिए स्टडी कर दी आई वॉज ऑन रोड फॉर नियरली 22 years। आई वॉज ऑन रोड विदाउट ए सिंगल पेनी, एंड दैट टाइम आई यूटिलाइज टू स्टडी। सर एक क्वेश्चन और है. ये डिसेंट्री से डेथ कैसे हो जाती है? क्या चीज? डिसेंट्री, दस्त से. हाँ, आजकल जो है पेट के काफी चल रहे हैं एक. अरे भाई डिहाइड्रेशन है यार। पानी नहीं रहेगा तो चलेगा क्या? आपकी बॉडी कैसे बनी हुई है? नियरली वाटर 60, से बने. 67, 68%, 70% वो पानी है। पानी. पानी मीन्स फ्लूइड्स, फ्लूइड फ्लूइड. लॉस हो रहा है। फ्लूइड को बचाने का कौन सा अपना टेक्निक है? large intestine mostly, then kidneys also, everywhere there are so many places where water is getting absorbed, conserved। conservation of water के लिए हमारा every part of our body is working। और अगर यस सर. कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं तो डिहाइड्रेशन होगा। लूज मोशन का मतलब है पानी निकल जा रहा। और हमने क्या कहा आपको? बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम किडनी, दैट इज व्हाट चाइनीज एक्यूपंक्चर सेज। मैंने क्या कह दिया? उस किडनी को भी अगर पानी की जरूरत है तो कौन देगा? स्प्लीन. स्टमक देगा। तो जब स्टमक डिसेंट्री देगा. हो जाए तो क्या करो? स्टमक. जब आपको पेचिश पड़ने लगे, लूज मोशंस होने लगे, तो क्या करो? पानी डालते रहो अंदर। नहीं,
इलेक्ट्रोलाइट्स वाला पानी डालते हैं डॉक्टर्स, ORS, एलोपैथिक। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मीन्स आयंस। ions. कौन सा आयंस? सोडियम, पोटेशियम मोस्टली। Yes, sir. कैल्शियम भी रहता है। वो तो उसका डेथ तो वही कारण है। In terms of TCM, मतलब yang deficiency of या chi deficiency of spleen. देखो, देयर आर टू थिंग्स, डायरिया एंड डिसेंट्री, देयर इज अ डिफरेंस। एम आई डायरिया में राइट क्या होता है सर? इकबाल साहब? एम आई राइट? डिसेंट्री एंड डायरिया, दे आर सेम थिंग और डिफरेंट? इकबाल साहब, Idea of it. But the डायरिया same as well. है? अला डायरिया में पेट ये हो रहा है, दोनों डिफरेंट है सर। दोनों डिफरेंट है? क्या डिफरेंस है? गूगल में देखना पड़ेगा। तो बिना देखे बिना समझे इलाज मत करो भाई। इलाज करने के पहले समझना चाहिए। डिसेंट्री में हीट बढ़ी हुई है, यांग बढ़ा हुआ है, और डायरिया में यांग डेफिशिएंट है। दोनों का इलाज एक ही होगा क्या? अलग हो। फिर डॉक्टर साहब, बिना यस सर। समझे इलाज करना है तो फॉर्मूला यूज करिएगा, अपना दिमाग तब लगाइएगा कि जब समझ में आ जाए। यिन यांग नहीं समझे तो। तो डायरिया में क्या होता है सर? उल्टी दस्त दोनों होते हैं क्या? नहीं नहीं, उल्टी दस्त दोनों अलग चीज है। उल्टी दस्त हो जाए तो बहुत सीरियस है, मरेगा आदमी। डायरिया में नीचे की तरफ सारी चीज आ रही है, और ओके। उल्टी दस्त दोनों हो गया मतलब ऊपर नीचे हर जगह से लीक हो रहा है। वेरी डिफिकल्ट। फ्लूड। हाँ, मरेगा आदमी जल्दी। हर जगह से फेंक रहा है, जहां जहां से रास्ता मिल रहा है। इट मीन्स लंग्स की यांग बढ़ गई है फिर? बाहर फेंकने का काम तो लंग्स का है सर। बाहर फेंकने का काम हार्ट का भी है। खून की उल्टी हो हार्ट जाए, का भी है। खून की उल्टी हो यस जाए, सर। पेरिकार्डियम। हार्ट खून की उल्टी देखी आपने? इतना बड़ा थक्का, पूरा पूरा खून बाहर आता है। पेरिकार्डियम की ट्रीटमेंट होती है, हार्ट और पेरिकार्डियम फायर की ट्रीटमेंट होती है। हम्म। और पानी को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? हु स्टॉप्स, हु एब्जॉर्ब्स? लार्ज इंटेस्टीन। लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टीन में यांग, यांग प्रोवाइड करने वाला कौन है? लंग्स। स्प्लीन। स्प्लीन। स्प्लीन प्रोवाइड्स यांग फॉर द होल एलिमेंट्री कैनाल। चलो टीसीएम विजडम करते हैं इसके बाद। कम बैक अगेन राहुल, वी विल टेक वन बाय वन। टीसीएम विजडम ओके। थोड़ा आना चाहिए। इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट टीसीएम, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज ये सब क्या है? एंड अप्रोच है, ट्रीटमेंट करने वाला मामला है ये सब। क्या, चाहे बीजी मेरिडियन हो चाहे जो भी हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो टीसीएम की होनी चाहिए ना हमारे पास एक्यूपंक्चर की। यस सर, यस सर। वो नहीं रहेगी तो कुछ नहीं। तो टीसीएम विजडम का एक कोर्स हम लोगों ने ड्राफ्ट किया था, पिछली बार किया था ना, 2-3 बार कर चुके हैं हम लोग। कर चुके हैं सर। हाँ, सो वी विल डू दैट, और विद rejuvenated and most updated knowledge whatever I have. We'll do it. Let us do it from Wednesday। बुधवार से चालू करें। आज सैटरडे है ना? सैटरडे, संडे, यस मंडे, सर। ट्यूसडे छोड़ दो। वेंसडे को स्टार्ट करें। लेट अस स्टार्ट ऑन वेंसडे। टीसीएम विजडम का थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा, देन वी कैन बिल्ड अप थिंग्स। चलो, और कुछ पूछना है तो पूछ डालो अभी। सर हाँ सर 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 वेंकटेश हाँ, बोलिए। सर वेंकटेश को बोलने दो पहले। हाँ बोलिए वेंकटेश सर जी। सर अपन ब्लॉकेज में है, क्लॉट होता ना सर ब्रेन में। क्लॉट आ, डिफरेंट चीज, क्लॉट अलग चीज है। क्लॉट बन के ब्लॉक होता है। क्लॉट का मतलब है कि उसके थक्के बन के, मतलब स्टेसिस ऑफ ब्लड। स्टेसिस ऑफ ब्लड हो जाए तो उसको तोड़ना अगर ब्रेन में हो गया तो बहुत डिफिकल्ट है। क्या कर सकते हैं?
ऑपोजिट फ्लोर में सर। नहीं, नहीं करे, काम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये तोड़ने का टाइम नहीं है काम आपके पास, आपके सर। पास टाइम नहीं है। अगर वो ब्लॉक हो गया है, जो पाथवे है ब्लॉक हो गया, एक ही रास्ता है कि दूसरा पाथवे बना लीजिए, बाईपास, बाईपास। बाईपास। ब्लड वेसल्स की जो दीवार है, जो टिश्यू है, उसकी ऐसी प्रॉपर्टी है कि दे कैन मेक कोलैटरल्स बाय देमसेल्व्स। क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? सर ये नॉर्मल तोड़ने का काम, क्या? ये तोड़ने का काम जीक्ल पॉइंट करता ना सर, वो तोड़ने का काम हमको नहीं मालूम, आई सर। डोंट, आई डोंट। यस सर। ब्लड को भेजना चाहिए वहां पर नॉर्मल फ्लो में, तो ब्लड का प्रेशर बनेगा, क्योंकि रुका हुआ है, क्लॉट है वहां, तो प्रेशर यस बनेगा। तो जहां पर प्रेशर बनेगा, वहां से दूसरी एक नाली बनने लग जाएगी। वो जो पाइप है, वो पाइप से दूसरी पाइप बनने लग जाएगी, और जहां तक जाना चाहिए दूसरी पाइप से चली जाएगी। दिस जस्ट लाइक बाईपास सर्जरी, दैट इज द ओनली चांस। और नहीं तो ऑपरेशन करके कट करके निकालना चाहिए, यस सर। दैट वी कैन नॉट डू। यस सर। तो क्लॉट अगर छोटा है तो फ्लश भी हो सकता है, लेकिन अगर छोटा नहीं है, पूरा जाम हो गया, तो बढ़ता जाएगा, तो रप्चर हो जाएगा। तो रप्चर होने से अच्छा है कि वहां पर ब्लड का थोड़ा प्रेशर हमने बढ़ाया एक्यूपंक्चर से। तो एक बाईपास अपने आप हार्ट में भी हो सकता है, ब्रेन में भी हो सकता है, और जगह में भी हो सकता है, कहीं भी बन सकता है। ब्लड वेसल्स कैन बी फॉर्म्ड, नए ब्लड वेसल बन जाएंगे। यस सर। तो ब्लड भेजो वहां जहां इन्फाक्ट होगा। अगर कहीं क्लॉट है तो कहीं पर इन्फाक्ट होगा, कहीं ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, तो जब आप ब्लड भेजेंगे तो ऑक्सीजन वहां अपने आप पहुंचने लग जाएगी। ठीक है। क्लॉट को तोड़ने का काम, इट इज वेरी टाइम टेकिंग एंड छोटा है, तो शायद फ्लश हो जाए, लेकिन फ्लश होगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्ट्रियोल या वेन्यूल्स में जाके फंसेगा, वो रोकेगा, उसको तो काट के ही निकालना पड़ता है। अच्छा, जो फाइब्रोसिस हो गई थी कल हम लोगों ने देखा था, उसका किसका? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। किसने पूछा? लक्ष्मी। डोंट फॉरगेट टू यूज द टिश्यू मेरिडियन, फाइब्रॉइड टिश्यू मेरिडियन, फाइब्रॉइड 2, फिब D2 एंड CMP। कौन से फिंगर में है? पैर में, फुट में है फाइब्रॉइड मेरिडियन, पता है कि नहीं? प्लीज सर। पैर के मिडिल फिंगर में। मिडिल फिंगर में है। सो यू शुड नॉट फॉरगेट टू यूज इन द लंग्स। फाइब्रोसिस हो गई वहां। तो कहीं भी हुआ हो, 2 में भी यूज कर सकते हैं, वहां पैरों में गड़बड़ हो गई, क्योंकि दिस सूडो मस्कुलर हाइपोट्रोफी, डसनी टाइप ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, प्रोग्रेसिव इज सूडो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मतलब डिपॉजिट्स हो गया फाइब्रॉइड्स का, काम कुछ नहीं हो रहा, फंक्शन नॉन फंक्शनल टिश्यू ज्यादा डिपॉजिट हो गया। शुरुआत है तो ठीक भी हो सकता, कुछ नहीं, कुछ लाइफ बढ़ सकती है। इट्स नियरली 20 years लाइफ, 20-22 years, 20-21 years की लाइफ होती है इन बच्चों की। सो इफ यू कैन एक्सटेंड इट इवन टू 35-40 years, इट्स गुड। ये सब पूरे कल जो भी दोनों केस हम लोगों ने डिस्कस किया था, दोनों ही बहुत रिस्की, बहुत गंभीर, फैटल, फैटल है। अब मैंने आज एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट डाली है, उसको डाल एक दे, बार डिस्कस कर ले। अच्छा किया है। क्या है उसमें? उसमें यूट्रस के है सर, एंडोमेट्रियम इज थिक, ecogenic and ecogenic and shows cystic changes with evidence of vascularity arising from anterior wall. थिकनेस जब वॉल की बढ़ जाती है,
that is excess of yin. Sir, That is excess of yes. yin. तो The यूट्रस के uterus लिए antiverted और है सर, इसमें antiverted. एंटीबायोटिक कोई बात नहीं है, डजंट मैटर। सर, तो आप थिकनेस को कंसंट्रेट करो। थिकनेस के लिए क्या है, यिन एक्सेस है, यिन को सेडेट करना होगा। कौन सी मेरिडियन जाती है वहां, विच मेरिडियन विल ट्रीट। दिस इज थर्ड प्रोसेसर। 3 प्रोसेसर है, एक है आपका ट्रिपल वार्मर, एक है हेड, और एक है महिलाओं में खास करके यूट्रस, यूट्रस ओवरीज एटसेट्रा। थर्ड प्रोसेसर मोर प्रोनाउंस्ड इन फीमेल्स। क्या कर सकते हैं, यूट्रस की वॉल्स, वॉल किसी का भी हो, वॉल इज ऑलवेज, बाउंड्री इज ऑलवेज विच एनर्जी, Dryness. ड्राइनेस, राइट। एंड विच मेरिडियन इज गोइंग, कौन सी मेरिडियन जा रही है वहां, 3 मेरिडियन आ रही, किडनी, स्प्लीन एंड लिवर। Liver. स्टमक, कौन कहता है स्टमक। ऊपर 3 पंप लगे हैं और नीचे 3 पंप लगे हैं। ऊपर वाले पंप बाहर फेंक रहे हैं, नीचे वाले पंप ऊपर ले रहे हैं, और वो तीनों जा रहे हैं थर्ड प्रोसेसर में। कौन कौन से हैं, किडनी है, लिवर है, kidney, spleen और liver. लिवर है, ठीक है ना। अब वो पूरा वापस नहीं ले रहे, क्या नहीं ले पा रहे हैं, ड्राइनेस। तो बाहर क्या है, स्टमक, स्प्लीन, यूबी, किडनी, और क्या है, Liver. गॉल ब्लैडर, लिवर। Liver. तो 2 आपके पास हैं, एक तरफ आपको मिल रहा है क्या क्या, किडनी, स्प्लीन और लिवर की स्पाइरल मेरिडियन मिल रही है। दूसरी तरफ क्या मिल रही है, स्टमक, यूबी और और जीबी की spiral. जीबी की स्पाइरल मेरिडियन मिल रही है। 6 उधर भी मिल रही, 6 इधर भी मिल रही, सबकी टोटल। हमको चाहिए कौन सा, ड्राइनेस। क्या चाहिए, Dryness. ड्राइनेस ज्यादा हो गई है। ड्राइनेस में ड्राइनेस और कोल्डनेस ये बढ़ गई, यिन बढ़ गई, यिन मींस ड्राइनेस कोल्डनेस बढ़ गई। ड्राइनेस स्पाइरल में, ड्राइनेस स्पाइरल में ड्राइनेस और कोल्डनेस बढ़ गई है। किसकी ड्राइनेस स्पाइरल, किडनी की हो सकती है, स्प्लीन की हो सकती है, और लिवर की हो सकती है। तो क्या करें, मेंस्ट्रुअल साइकिल देखो। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप देखो कि किडनी क्या है, किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिकुलर सेक्शन, स्प्लीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशनरी, है ना, राइट। एंड लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीडिंग पीरियड, राइट। एंड Right. पोस्ट, हाँ। तो चारों सेक्शन के लिए, तो एक में लिवर यांग है पहला पोर्शन में, फिर स्प्लीन है, फिर लिवर, नहीं सॉरी, लिवर यिन है, फिर स्प्लीन है, फिर लिवर किडनी यांग है, किडनी यिन, स्प्लीन, किडनी यांग एंड लिवर। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो लेडी का कैसा पीरियड हो रहा, लेट हो रहा है तो किडनी यांग है। ये तो मेनोपॉज वाली स्थिति है. तो मेनोपॉज में क्या होता है, मेनोपॉज yin में क्या होता है, yin deficiency. यिन डेफिशिएंसी हो जाती है। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, उसको एंडोमेट्रियम में थिकनेस बढ़ गई। तो एंडोमेट्रियम का कोई पॉइंट है क्या डॉक्टर वॉल का, देखो जरा, आई डोंट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं है। एंडोमेट्रियम आप का तो नहीं है सर, सीधा हम्म, उसको देखो, सुनो गोनेट्स का है. मेरी बात, गोनेट्स का है, एंडोमेट्रियम का नहीं है सर. किसका किसका है, एक तो इस पर सर
इसका यूबी 65 इसमें है, यूट्रस का है, इन फीमेल यूट्रस। और एक 66A है, वो किसका है? उसमें भी पेरिटोनियम और सीरस कोटिंग ऑफ यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर इंक्लूडिंग यूट्रस ओवरीज। तो आप किडनी, यूबी, स्प्लीन, स्टमक और गॉल ब्लैडर, लिवर, अलार्म पॉइंट्स देखो। अगर आप पीरियड का हिस्सा नहीं मालूम कर रहे हो, उसको मतलब लेट होता है ना, अभी डिले होता है, ठीक है ना? तो यांग की डेफिशिएंसी हो चुकी, किडनी यांग की डेफिशिएंसी हो चुकी है। सर तो किडनी और लिवर, ये दोनों की ट्रीटमेंट करो और साथ में स्प्लीन की करो। ये तीनों की ड्राइनेस पे ट्रीटमेंट करें। ड्राइनेस तो आपको रिड्यूस करनी पड़ेगी, कम करना पड़ेगा। तो स्पाइरल मेरिडियन कौन सी लेंगे? लिवर 4 स्पाइरल, सबसे पहले ड्राइनेस कम करना है। सर जो लिवर की यिन है, वो ज्यादातर जो बनती है वो कहाँ रहती है? हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में रहती है। हमारे पास दो लिवर नहीं है, यिन यिन बनाने के लिए और यांग बनाने के लिए। किडनी वाला मामला नहीं है, इट इज नॉट लाइक किडनी, है ना? तो हमारे पास लिवर की हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है, स्पाइरल मेरिडियन है और वर्टिकल मेरिडियन है। तो आप ड्राइनेस को हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में सेडेट कर दो और विंड को वर्टिकल मेरिडियन में टोन कर दो। किडनी की यांग को टोन कर दो। सर और स्पाइरल में क्यों नहीं कर सकते सर? लिवर 4 स्पाइरल में वी कैन सेडेट ड्राइनेस एंड वी कैन टोन। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर उसकी जो ब्लीडिंग होती है, एक दिन के लिए आती होती है, बंद हो जाती है, ऐसा भी हो सकता है ना? 2 दिन के लिए होती, बंद हो जाती, या ब्लीडिंग, इसकी तो ब्लीडिंग शुरू होती होगी तो बहुत लंबा चलता होगा, जो आप बता रहे हैं रिपोर्ट थिकनेस। नहीं, अब तो मेंसेस वो मेनोपॉज आ गया ना, इसलिए अब कोई इश्यू है नहीं ना ब्लीडिंग का। तो मेनोपॉज हो गया तो फिर इसके बाद ब्लीडिंग होती नहीं है उसके, हाँ, नहीं होती बिल्कुल। बस खत्म। तो आप वही करो। देखो अलार्म पॉइंट कौन सा बज रहा है ज्यादा, चेक किया है अलार्म पॉइंट? किडनी, नहीं, वो चेक नहीं किया, वो कर लेता। किडनी, लिवर और स्प्लीन। सर तो आप स्प्लीन ले लो ना, स्प्लीन और लिवर ले लो। अच्छा, स्प्लीन की भी ड्राइनेस में बोलूँ हॉरिजॉन्टल? किडनी, लिवर, स्प्लीन तीनों ले सकते हो यार, क्या कर, तीनों ले लो, क्या है उसमें? कुछ नहीं, ड्राइनेस सेडेट करो। K7 स्पाइरल, लिवर 4 स्पाइरल, SP5 स्पाइरल। ड्राइनेस सेडेट सबको, विंड टोन स्पाइरल में। विंड टोन करोगे तो क्या होगा? SP5 will be tonified, liver 4 will be tonified, and K7 will be tonified. K7 will help you in increase of सब में। किडनी की यांग भी बढ़ेगी। क्या एज है? 50? 66। बस ठीक है, यही करो, तीनों स्पाइरल में ड्राइनेस सेडेट विंड टोन। ठीक। ठीक है सर हाँ, थोड़ी देर पहले आपने बताया कि किडनी इंची और फुल बॉडी किडनी इंची दोनों बनाने में डिफरेंस है, वो क्या है? यिन किडनी, जब बोला जहां पर यिन किडनी लिखा रहेगा वो वाटर किडनी से मतलब है, और किडनी यिन लिखा रहेगा उसमें किडनी की यिनची का मतलब है। किडनी की यिनची कहाँ होगी? किडनी हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में होगी। यिन किडनी जहां लिखा होगा ट्रांसलेशन में, उसका क्या मतलब है? वाटर किडनी। ये मिस्टेक हुआ है ट्रांसलेशन में।
अच्छे अच्छे किताबों में हुआ है, हमने कई जगह पढ़ा है, लेकिन जहां उन्होंने, जब क्लियर मेरा दिमाग हुआ तो समझ में आ गया अभी ऐसा है। मैं पहला आदमी नहीं हूं इसको देखने वाला, some other people also have marked it। ठीक है ना? तो जो ट्रांसलेशन जब भी पढ़ते हैं आपको ध्यान रखना इस चीज पर। दैट इज व्हाट आई सेड। ठीक है, यिन किडनी बोलेगा तो वाटर किडनी है, और किडनी की यिन है मतलब यिन ची ऑफ किडनी। यिन ची ऑफ किडनी जब बोल रहा है मतलब किडनी की हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, और, और यिन किडनी बोल रहा है तो वाटर किडनी, ऐसा। हम्म? ये सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है अगर आप ये समझ जाते हैं कि दोनों किडनी अलग अलग ऑर्गन है, दो अलग सेपरेट ऑर्गन्स हैं, वाटर किडनी एंड फायर किडनी। ठीक है, ठीक है। कुछ और प्रॉब्लम रहेगा तो यू कैन ऑलवेज आस्क, वी विल अगेन मीट, और आई विल अनाउंस द क्लासेस। आप लगाओ यार उसको कल्याण, आई एम क्वाइट ईगर एंड एंशियस टू नो द इफेक्ट। Sure, sir. You said it's wind excess. You हाँ said I have to sedate. हाँ, देखो ना, करो And तो करके तो देखो। sure, sir. नींद आ रही है, चलो बंद करते हैं। सर लेवल 1 और लेवल 2 दोनों आ जाएगा ना इसमें? हम तो इसको टीसीएम का करेंगे, उसमें ही जो कुछ आ जाएगा आ जाएगा। टीसीएम मतलब वी विल टॉक अबाउट शू पॉइंट्स, वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग मोर और लेस। यिन यांग से शुरू करेंगे, यिन यांग भी करेंगे तो लेवल 1 भी आ जाएगा। यस, 5 एलिमेंट भी आएगा, पैटर्न्स आएंगे, नहीं, लिवर का पैटर्न्स क्या, कौन कौन सा पैटर्न हो सकता है। ट्रीटाइज 7 को फॉलो करेंगे हम, ओके। प्रयागराज वाला जो ट्रीटाइज 7 है, आई शैल फॉलो दैट। मे भी थोड़ा बहुत इधर उधर से भी लेंगे, लेकिन मोरलेस उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, ट्रीटाइज 7 तो सबके पास ही होगा मोरलेस। इलाहाबाद वाला है ना, एडवांस्ड एक्यूपंक्चर, हाँ सर। उसको ही फॉलो करेंगे। सो शैल वी क्लोज? गुड नाइट। Good Yes, night. sir. Good night. गुड नाइट। Thank you very much to all of you. You had enough of patience to listen to me.